हमारे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे IQ 602 फाइनल टर्म जो है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन, जिसमें हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। जितनी भी हमारी स्लाइड्स थी, ठीक है, उनसे जितने भी क्वेश्चन है वो इस फाइल में हम कवर हो जाएंगे। जो है हमारे पास टोटल 31 पेज। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी पहले जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि जिसमें हम लोग MCQs कर रहे थे। सेकंड पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें हम लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ये आप लोग देख सकते हैं। और थर्ड पार्ट में अब हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। फाइनल पार्ट में हम करेंगे शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन, ठीक है। ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के लिहाज से, मीन अगर आपको ये शॉर्ट भी लगे हैं तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के इतने क्वेश्चन इनफ है। बाकी जो नीचे देखें, अगर हम देखें ना, कुछ क्वेश्चन बाकी में लॉन्ग है। और हमारे पूरी स्लाइड में से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे वो इस फाइल में अवेलेबल। दूसरी बात कि इसमें से किसी भी एक वीडियो के लिंक, ठीक है, आपको चारों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन चारों में से जो भी फाइल चाहिए, तो अगर उसे पेड चाहिए तो वो जब चाहे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे गिवन होगा। लेकिन अगर उससे फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो उनको जो भी फाइल चाहिए इन चारों में से, ठीक है, चाहे शॉर्ट नोट्स की चाहिए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन की चाहिए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की चाहिए, या MCQs फाइल चाहिए फाइनल टाइम की, तो वो उस वीडियो को 100 व्यू प्रोवाइड कर दे, ठीक है। उसके बाद उसको फ्री मेन नीचे जो ग्रुप का लिंक है, ठीक है, ये वाला, इसमें उन्हें वो फाइल मिल जाएगी। ओके, चलिए आए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वीक की जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें से क्वेश्चन है, हाउ हैज डिजिटल स्टोरेज इवॉल्व फ्रॉम द कंप्यूटर टू मॉडर्न टाइम, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन EDA, IDA and SI, what are the advantages and disadvantages of tape storage, explain the concept and benefit of VDL, what then describe the growth of digital data and storage capacity, how do storage controller collect disk and tap to server and present them to the operating system, what are the main threat level to their purpose, explain the deduplication, pulling, snapshotting and storage system, what are the provisioning and how does it manage storage efficiency, describe SDN architecture, connectivity and protocols। फिर हमारे पास वो उस वीक की साइट थी वो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीक की साइट हमारे पास स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द concept of computer and data center environment and describe the major category of computer system. It include discuss the historical evolution of computer from early programmable machine to modern microprocessor based system. Next, explain modern server housing model and describe the advantages of rack mounted and blade server architecture. Describe how a CPU work including instruction set, machine code, assembly language, clock speed, and work size. Compare major CPU architecture including x86, ATM, ARM, and explain their role in the modern computing। ABC का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, explain the SBRC and power CPU architecture and their in modern computing. Describe the evolution of the main memory technology from vacuum tube to modern RAM. Compare key external and internal computing interface and their evolution. Explain compute virtualization and its advantages in data center operations. Identify challenges associated with the virtualization and virtual machine spiral. What are the limitations and challenges of server virtualization? Find the difference between emulation, logical partition, and hypervision. Describe container technology and its benefit. What is the container orchestration and its role in data center management? Explain the section and virtualization capability of the modern mainframe। फिर हमारे पास वो वीक भी खत्म हो जाता है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द positioning of mid-range platform between the mainframe and x86 server and describe their main characters. Explain the evolution of x67 architecture from its
Origin to modern system on a chip, including the role of chips and architecture change over time. Next question है, why did x86 server become the de facto standard in a data center and what limitation lead to the widespread adoption of a virtualization? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर सुपर कंप्यूटर एंड मेनफ्रेम कंप्यूटर इन टर्म ऑफ डिजाइन लॉजिक workloads and modern implementation. Next, I describe the role of GPU in high-performance computing and explain how they exit different from traditional GPU. Explain how availability and reliability are achieved in the modern x86 server environment, including hard-shaped components, memory protection, and virtualization-based level clustering. Explain the evolution of CPU computer performance from the first microprocessor to modern CPU and discuss the role of Moore's law and limitations. उसके बाद यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन एक्सप्लेन generalizing file system and its what's its improved system reliability and recovery, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग मैं सॉरी मूव कराऊंगी तो आप लोग देख लें। ओके, ये वाला वीक जो था हमारे पास यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लेंथी को मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, अक्सर उनका जो क्वेश्चन होता है वो इसमें काफ़ी सारे लेंथी से जो हमें समझ नहीं आती कि पहले उसको क्या कौन सा पार्ट करें और कौन सा पार्ट ना करें।
Next question है describe the procurement process from IT infrastructure and the role of bills of material and statement work. Compare the use of predefined supplier versus the best bid policy in IT. Procurement formal writing process used in the IT procedure and key steps. ओके ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। ये इसका हाफ आंसर है। आप हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है। इतनी ज़्यादा लेंथ वीडियो नहीं रहेगी, बस छोटी सी रहेगी। देखें ऊपर अगर हम पेज देखें तो हमारे पास 31 है और अभी जो है वो हम लोग 23 पेज तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वीक की इंट्रोडक्शन लाइफ साइकिल पार्ट 2 ठीक है, जिसमें चैप्टर 17 to 19 इंक्लूड हो रहे थे। उसमें ये हमारे पास टाइम क्वेश्चंस थे कुछ। मुझे जो शॉर्ट फॉर्म लिखी थी इनकी फुल फॉर्म अक्सर एंटिकल्स में आती है। और फिर नेक्स्ट दो क्वेश्चन ये है मेरे पास। फिर लाइक ही नहीं की। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास लास्ट दो क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग चलते हैं बिल्कुल एंडिंग की तरफ। और इसी के साथ जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था मेन ठीक है पार्ट 3 हो गया, वो भी खत्म।